Hello, class 11 students. This is Karishma Bhagani. This is our next video for chapter 1. The name of the chapter was The Portrait of a Lady, and we have already read half of this chapter. Let's have a quick review of the chapter, what we have read till now. We have read about grandmother of the author, that is Khushwant Singh. Okay, so he was telling about her grandmother. When he was a child, he thought that his grandmother would never have been pretty, and he could not believe that she could even have a husband. That thought was almost revolting for him. In the next paragraph, we have seen about the personality of the woman, that is the grandmother of poet. The poet has described that she had been short, flat, slightly bent, and she had wrinkles, and she was so terribly old. But he also said that she could never have been pretty, but she was always beautiful. And now after these things, he described about she was in a spotless white, one hand resting on her waist to balance her stoop. This all we have read till now. Her personality included that she had a pale, puckered face. Her lips were constantly moving in audible prayer. She was beautiful, like an expanse of pure white serenity. Now we have come to the stage where grandmother and poet become good friends, and after parents of poet left him with grandmother, he used to live with grandmother only, and they both went to school together while grandma was going to prayer in a temple, worship in a temple, and uh, poet was busy in his school where he got taught morning prayer, and prayers taught him morning prayer and alphabets. Okay, and after school and worshipping, they both came together with some stale chapatis with them, which they carried from before, and they give used to give them to village dogs. Okay. Now, grandmother went to school because the school was attached to temple. So next we have read that grandmother used to read scriptures inside the temple, and after his parents got settled in city, it was a turning point because they called them to the city, and now the normal school was changed to the city school. In city school, the poet was being taught science, maths, and it was something that his grandma couldn't help him. Okay, so she used to hesitate, and she accepted her seclusion with resignation. Now there was no together going to school. There was a city bus. There were no dogs to which they can give stale chapatis. So now grandma used to sit in veranda and used to feed sparrows. Okay, and her she was sitting on her spinning wheel, and always reciting prayers. Now we have to study this thing from next point. Okay, when I went up to university, I was given a room of my own. जब वो यूनिवर्सिटी गए थे तो he was given a room of his own. The common link of friendship was snapped. अब क्या हुआ था कि जब वो सिटी में आए थे, उसके बाद में उनकी और ग्रैंडमदर की फ्रेंडशिप की जो कॉमन लिंक थी, जो उनका एक ही रूम था, उसके बाद में जब वो यूनिवर्सिटी में गए तो वो एक कॉमन लिंक भी टूट चुकी थी. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूशन विद रेजिग्नेशन. उन्हें अच्छा नहीं लगा था, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था. शी रेयरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील टू टॉक टू एनी वन. और वो अपना स्पाइनिंग व्हील बहुत कम यूज़ करती थी किसी से बात करने के लिए. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर स्पाइनिंग व्हील एंड रिसाइटिंग प्रेयर. सनराइज से सनसेट तक वो प्रेयर करती रहती थी अपने स्पाइनिंग व्हील पे. ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्सड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज. सिर्फ आफ्टरनून मतलब दिन में ही वो स्पैरोज को फीड करने के लिए थोड़ा सा रिलैक्स कर लेती थी. वाइल शी सैट इन वरांडा
ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, और वरांडा में बैठे बैठे वो ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करती थी. हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर, क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बैडलम ऑफ चेरुबिंग्स. बहुत सारे बर्ड्स उनके आसपास अराउंड कलेक्ट हो जाते थे और एक बैडलम ऑफ चेरुपिंग्स को क्रिएट करते थे. नाउ अ वेरिटेबल बैडलम ऑफ चेरुपिंग्स इज़ अ क्लॉज हेयर विच जनरली मीन्स दैट एक ऐसा माहौल क्रिएट करते थे जहाँ पे सिर्फ चहकने की ही आवाज़ें आ रही हैं. She came and perched on her legs, other on her shoulders, some even sat on her head. कुछ बर्ड्स उनके लेग्स पे बैठते थे, कुछ उनके शोल्डर्स पे, कुछ उनके इवन हेड पे भी बैठते थे. शी स्माइल्ड बट नेवर शूड दैम अवे. वो स्माइल करती थी लेकिन उन्होंने कभी बर्ड्स को भगाया नहीं. इट यूज़ टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर. और ये आधा घंटा उनके दिन का सबसे हैप्पीएस्ट आधा घंटा हुआ करता था. When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. जब पोइट ने ये सोचा कि उन्हें अब्रॉड जाना है, उस सिटी से बाहर जाना है, तो उनको फाइनली पता था कि ग्रैंड मदर अपसेट होंगी. आई वुड बी अवे आफ्टर 4-5 years एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल. वो 5 सालों तक बाहर जाने वाले थे और उनकी एज, ग्रैंड माँ की एज के बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता था. बट माई ग्रैंड मदर कुड. शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल. लेकिन उनकी ग्रैंड मदर कह सकती थी, वो इमोशंस ज़्यादा इमोशनल नहीं थी. शी कैम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन. वो रेलवे स्टेशन तक आई पोइट से मिलने, लेकिन उन्होंने अपना कोई इमोशन नहीं दिखाया, ना ही उन्होंने कुछ बात करी. हर लिप्स वर मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर. उनके लिप्स प्रेयर में मूव कर रहे थे, प्रेयर कर रही थी, वो रिसाइट कर रही थी, और उनका माइंड भी प्रेयर में लॉस्ट था. हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ रोजरी. उनके फिंगर्स जो थी वो हम लोग बोलते हैं ना मोतियों की माला जपना, तो बीट्स ऑफ रोजरी वो बिजी थी उसमें. साइलेंटली शी किस्ड माई फॉरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस. और साइलेंटली उन्होंने पॉइंट के फॉरहेड पे किस किया और उसके बाद में पॉइंट वहाँ से चले गए. एंड दैट वाज द लास्ट साइन ऑफ फिज़िकल कांटेक्ट. लास्ट साइन ऑफ फिज़िकल कांटेक्ट मतलब कि शायद वो लास्ट बार था कि उन्होंने ग्रैंड माँ का टच फील किया था. बट दैट वाज नॉट सो. लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा उन्हें लग रहा था लेकिन ऐसा कुछ नहीं था. आफ्टर 5 years आई कम बैक होम. 5 साल के बाद जब वो वापस आए, आई वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन. वो स्टेशन पे ही उनसे मिले. शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर. वो वैसी की वैसी ही थी. शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड वाइट वाइल शी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हेयर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स. मतलब कि उनके पास अभी भी वर्ड्स नहीं थे, वो कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन उन्होंने जैसे ही उनको अपनी आर्म्स में लिया और पॉइंट सुन सकते थे कि वो अभी भी प्रेयर्स ही कर रही थी. Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer, and with frivolous rebucks. मतलब कि जब वो आए थे तो उसके फर्स्ट डे पे भी तो पॉइंट ने ये नोटिस किया कि उनके लिए हैप्पीएस्ट मोमेंट्स कौन से थे, जब वो स्पैरोज़ को फीड करती थी. इन द इवनिंग अ चेंज कम ओवर हर. शी डिड नॉट प्रे. इवनिंग में उन्होंने नोटिस किया कि उन्होंने प्रे नहीं किया. शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग. उन्होंने आसपास की कुछ वुमेंस को बुलाया, कुछ महिलाओं को बुलाया और नेबरहुड में से बुलाकर उन्होंने ओल्ड ड्रम लेकर गाना गाना स्टार्ट कर दिया. फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम. और बहुत घंटों तक उन्होंने डिलैपिडेटेड ड्रम मतलब कि ड्रम की जो स्किन्स हैं उसको बजाते रहे. एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स. और उन्होंने गाने गाए किसकी? वॉरियर्स की होम कमिंग के लिए. वॉरियर्स कौन होते हैं? जो वॉर में लड़ते हैं हमारे लिए, उनके घर आने की ऐसे सॉन्ग्स उन्होंने गाए. We had to persuade her to stop to avoid overstraining. That was the first time since I had known her that she did not pray. उनको अवॉइड करना चाहते थे, स्टॉप करना चाहते थे, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हो रहा था कि पॉइंट ने नोटिस किया था कि उन्होंने प्रेयर नहीं करी. द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल. It was a mild fever and the doctor told us that it would go.
नेक्स्ट ही मॉर्निंग पे ग्रैंड माँ इल हो गई, मतलब कि बीमार पड़ गई। उनको थोड़ा सा फीवर था और डॉक्टर ने कहा था कि वो फीवर चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन ग्रैंड मदर का मानना कुछ और था। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने बताया था कि अब उनका एंड आने वाला है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड प्रे। और उन्होंने ये बताया था कि क्योंकि मतलब उनकी लाइफ के लास्ट चैप्टर के कुछ घंटे पहले ही उन्होंने प्रेयर करना बंद कर दिया था। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और इसलिए वो कुछ भी और समय हम उनसे बातें करने में वेस्ट नहीं करना चाहती। वी प्रोटेस्टेड, मतलब पॉइंट ने इस बात से एग्री नहीं किया, डिसएग्री किया। बट शी इग्नोर्ड हर प्रोटेस्ट, लेकिन उस डिसएग्रीमेंट को उन्होंने इग्नोर किया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग टेलिंग हर बीट्स, और उसके बाद में वो बेड पर जाकर सो गई और वो अपनी बीट्स को टेल कर रही थी, मतलब कि अपनी माला जप रही थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, हमें पता भी नहीं चला, मतलब कि पॉइंट को पता भी नहीं चला। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, उनकी प्रेयर बंद हो गई और जो माला थी वो उनकी फिंगर्स में से नीचे गिर गई। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी नो दैट शी वॉज डेड, और उनके फेस पे एक ऐसा कलर आ चुका था और सब लोगों को पता चल चुका था दैट शी वॉज डेड। We lifted her off the bed and, as it's customary, laid her on the ground and covered her with a red shawl. उनको बेड पे से उठाया और जैसे कि कस्टम्स हैं उन्हें ग्राउंड पर लेटाकर उनको एक रेड शॉल से ढक दिया। आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फनरल, मतलब कि कुछ घंटे जो मॉर्निंग होती है, मॉर्निंग मतलब कि शोक जताने के बाद में उनको अकेला छोड़ दिया और अरेंजमेंट्स करने में सब लग गए, उनकी फनरल की अरेंजमेंट्स। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विथ अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रेमेटेड, और इवनिंग में वो उनके रूम में गए स्ट्रेचर लेकर उनको लेने के लिए। द सन वॉज सेटिंग एंड इट हैड लिट हर रूम एंड वरांडा द ब्लेज ऑफ अ गोल्डन लाइट, सनसेट होने वाला था और उनके वरांडा में और रूम में एक गोल्डन लाइट की ब्लेज छाई हुई थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, वो लोग कोर्टयार्ड में ही रुक गए। ऑल ओवर द वरांडा इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी लेड डेड, मतलब कि पूरे वरांडा से उनके रूम तक जहाँ पर उनको लेटाया गया था। एंड स्विफ्ट wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor, हज़ारों चिड़ियाएँ फ्लोर पे बैठी हुई थी। देयर वॉज नो chirruping, थोड़ी सी भी चहकने की आवाज़ नहीं आ रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, और उन लोगों को बर्ड्स के लिए बहुत बुरा लग रहा था। एंड माई मदर फैच सम ब्रेड फॉर देम, और पॉइट की मदर उनके लिए कुछ ब्रेड लेकर आई। शी ब्रोक इट इंटू लिटिल क्रम्स, उन्होंने उनको टुकड़ों में तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू दैम, और बिल्कुल वैसे ही फेंका जैसे कि ग्रैंड माँ उनको खिलाने के लिए दिया करती थी। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, स्पैरोज ने ब्रेड पर ध्यान ही नहीं दिया। When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly, और जब उनके अर्थी ले जा रहे थे तो सारी चिड़ियाँ चुपचाप फ्ली ओवे, मतलब उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वैप द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और नेक्स्ट मॉर्निंग ने स्वीपर ने, झाड़ू लगाने वाले ने क्या किया, ब्रेड क्रम्स को डस्टबिन में लेकर डाल दिया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट a lady whose portrait was all about she was constantly using prayer, she was constantly busy in worshipping, and her bond with her grandson. So I hope students you have got this chapter correctly and try to attempt this question answers of the chapter. Okay, tab tak keep studying.